Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you are doing great. So students, we are in chapter number 3 and the name of our chapter is energy resources. You have been familiar with topic fossil fuels and energy resources. So today we are going to study about burning fossil fuels, and before that let me tell you what is fossil fuels. What is fossil fuels? Burning of fuels, ठीक है, where the energy is released by a chemical reaction is known as combustion. What is ignition? Ignition is a process that start when it start burning, ठीक है. It is the process of burning fuel, the process of burning, ठीक है. How we get our energy? Process of burning से हम लोगों को fuel मिलता है, and combustion is a chemical reaction, ठीक है. Then what is ignition? It is the starting process of and the process of heating, ठीक है. Now these are the most common fuels हम लोग घरों में यूज़ करते हैं for cooking purposes, for motor, for power stations, for electrical engineering purposes, for industry purposes. These all we use, ठीक है. Some are oil products that are used in cars, for heating homes, in power stations. This liquid is used for heating homes and cooking. Also used for fuel. It is in factories, power stations. Natural gas, coke and coal used in homes, power stations. Then we studied then how do fossil release energies, ठीक है. This methane molecule, this is water molecule, this is carbon dioxide molecule, ठीक है. The breaking down of methane molecule form water molecules, and it also form carbon dioxide. After that we have studied fossil fuels, how we get our fuel. What is fossil fuel? Decayed living things. Fossil fuels is formed by decayed living things. Coal, oil, natural gas are the common fossil fuels. After that you have been studied oil and natural gas. Then our today topic is burning fossil fuels. Now what is burning fossil fuels? Burning fossil fuels is made from the decay of dead animals of plants is known as fossil fuel. Fossil fuel we get our energy from fossil fuels. We depend upon fossil fuels. How? Because it provides us energy in the form of heat in our homes, for cooking purposes, for heating purposes, for power stations, and is also used to generate electricity and run our motor vehicles. Unfortunately, burning of fossil fuels, when we burn fossil fuels, it produces harmful substances that cause air pollution also. What is fossil fuels? Fossil fuels. We get our fossil fuels is a dead particles or decay of living organisms such as plants and animals is known as fossil fuel. Then fossil fuel, through burning fossil fuels we get our energy that is used in homes, power stations, motors, vehicles, and many other things. And unfortunately, by burning of fossil fuels, it causes air pollution. Two main significant results for air pollution are acid rain and global warming. Now, what is how air pollution caused? Air pollution caused through burning of fossil fuel. When we burn fossil fuels, we got air pollution, and air pollution in the form of, we get our air polluted, and it pollutes our air in the form of global warming and acid rain. Now, first of all, let us study what is acid rain. What is acid rain? For example, all rainwaters contain small amount of acid. This is a general thing that each and every time when it rains, it contains acid water. Water is acidic. Okay, rainwater dissolve because why rainwater is acidic? Because it contains carbon dioxide, which is present in the air, and ठीक है, rain dissolve with carbon dioxide from the air, right? ठीक है, making carbonic acid. ठीक है. However, other gases produced by industries such as coal-fired power stations cause rain to more acids. ठीक है.
और एज यू नो दैट रेन जो होती है क्या होती है, कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक, वाई बिकॉज जब when rain happens or when rain comes, ठीक है, it dissolve with कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है, एंड अदर फॉर्म्स हमारे पास कोल फाइड पावर स्टेशन में यूज़ होती हैं जो हमारे पास एसिड को मोर एसिडिक बनाते हैं। नाउ दीज गैसेज आर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, टू गैसेज जो हम लोग जो होते हैं मेन गैसेज जो कि हमारे रेन को एसिड करते हैं, ठीक है, कॉज कॉज रेन एसिड इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। How when they dissolve with water they form sulfurous and nitrous acid respectively. When nitrogen dioxide and sulfur dioxide dissolve with water, it form sulfur and sulfurous and nitrous acid respectively. The damage done by acid rain is expensive. और जो हम लोगों को डैमेज कॉज करना पड़ता है, जो हमें डैमेज होता है ड्यू टू एसिड रेन, वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान दे होता है, ठीक है। इन मैनी एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड फिश लेक्स, मैनी एरिया ऑफ द वर्ल्ड में क्या होता है, जब वाटर जो होती है एसिड रेन जो होती है जब होती है तो लेक्स में वाटर जाता है जिसकी वजह से फिशेज़ और अंदर जो सी एनिमल्स होते हैं, सी फिश होती हैं, वो क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड में जो रेन में एसिड होता है, ठीक है, वाटर में एसिड होता है, बिकॉज इनका लाइफ बर्थ टू डेथ वाटर में होता है। तो वाटर नीड टू बी प्योर एंड not be acidic, but as acid rain falls, due to this it is very bad for lakes, as fish and many sea animals lives in the lakes, and trees in the forest are dying because the acid release poisonous aluminum from the soil. जब रेन होती है, ठीक है, तो वो सॉइल में डिज़ोल्व हो जाती है। जब वो एसिड वाटर जब जो सॉइल में एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है, वो ट्रीज़ के लिए भी ख़तरनाक होता है, ठीक है, ठीक, जो ट्रीज़ फॉरेस्ट में होते हैं उनके लिए भी ख़तरनाक होता है, ठीक है। बिल्डिंग्स जो होती हैं उसमें भी क्रम्बलिंग यानी कि क्रैक्स आ जाते हैं, मेटल भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है एंड रस्ट होना शुरू हो जाता है मोर क्विकली बिकॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन से क्या होता है, फॉरेस्ट तबाह हो जाते हैं, ठीक है, लेक्स तबाह हो जाते हैं, फिशेस मर जाती हैं सीज़ में, ठीक है, क्योंकि वो पानी में ज़िंदा रहते हैं। जब वाटर एसिडिक हो रहा है तो उनका लाइफ टाइम कम हो जाएगा, और फिर जब वो वाटर एसिड रेन सॉइल में एब्जॉर्ब होगा तो वो ट्रीज़ के लिए, फॉरेस्ट के लिए जो होगा वो ख़तरनाक हो। एज लॉन्ग एज बिल्डिंग्स में पानी पड़ेगा तो वो एसिड रेन वाला बिल्डिंग्स को क्रैक करेगा, बिल्डिंग को मजबूत जो अगर जितने भी हो ना वो मजबूत एसिड की वजह से वो पड़ता जाए तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो उनमें भी क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, उनमें भी आयरन भी हो तो आयरन में भी रस्टिंग आ जाती है, ठीक है, एसिड जब तक उस पर गिराते जाओ। सो इट कॉज एसिड रेन। सो व्हाट वी कॉज एसिड रेन में ये जो थी ये मेन थिंग्स थी जो हमें एसिड रेन से कॉज होती हैं, और ये हम लोगों को बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। और एसिड रेन कॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एयर हमारे पास कैसे पोल्यूट होती है, जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉल्ड एयर पोल्यूशन, एंड देयर आर ऑफ टू काइंड्स वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ एयर पोल्यूशन इज ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर एसिड रेन वी हैव बीन discussed. Now let's just discuss what is global warming. Now what is global warming? The earth is surrounded by air, right? As you know that our earth is surrounded by air, ठीक है, which act as like a insulation, ठीक है, which act like the insulation keeping heat in, just like the gas in the greenhouse. तो हम क्या कहते हैं कि अर्थ में हमारे पास क्या होता है, एयर होता है। एयर तो होता है, फिर हमारे पास वो लेयर एक ऑफ इंसुलेशन जो होता है वो हमारे अर्थ को हीट करता है ताकि हम तक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल सके, ठीक है, फॉर्चूनेट जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो लाइक इन ग्लास इन ग्रीन हाउस, ठीक है, मतलब जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास ऊपर लगाए जाते हैं, जितना हीट चाहिए उतना उनको आता है, जितना नहीं चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाद में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उससे उनको नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, एयर जो होता है हमारे सराउंडेड होता है, जो कि हमें प्रोवाइड क्या करता है, हीट। कैसे प्रोवाइड करता है, लेट्स जस्ट स्टडी। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी गुड. Carbon dioxide is very good at keeping in heat. Carbon dioxide very good at keeping in heat. This is why it is called greenhouse effect. Carbon dioxide good होता है क्योंकि वो हमें heat provide करता है air के through, and this process is known as greenhouse effect. It has been very useful in making the earth warmer.
ठीक है। ग्रीन हाउस से क्या होता है, हमारा अर्थ जो होता है वार्मर होता है, दैट इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ठीक है। अर्थ वार्म्स इनफ फॉर द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। ग्रीन हाउस फिर कह रहे हैं अर्थ हमारे पर क्या करता है, वार्म अप कर देता है हमारे सराउंडिंग को इस हीट की वजह से, जितना ह्यूमन लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हाउ एवर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ इंक्रीजिंग, एज यू नो दैट व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, वट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, डे बाई डे, इन विच कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन अर्थ, सो दैट्स वाई इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज ग्रीन हाउस, ठीक है। जैसे जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा, ठीक है, एयर में, उतना हीट इंक्रीज़ होगा, जितना हीट इंक्रीज़ होगा उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ होगा, राइट। एंड कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइज टू द ग्लोबल वार्मिंग, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाता है, एयर इंक्रीज़ हो जाता है, गैस इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस ग्रेटर बी द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेटर बी द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन लास्ट 100 ईयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हमारे पास क्या था, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, दैट इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। द हमारे पास जो 100 ईयर्स का जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो ड्यू टू लार्जर कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा जो अर्थ का सरफेस हो गया उसमें टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो गया, इतना ज़्यादा नहीं है, बट एज द टाइम पास तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, सो दिस इज़ हार्मफुल फॉर द अर्थ। दिस मे नॉट सीम्स वेरी मच, बट कंटिन्यूड टेम्परेचर राइजेज लाइक दिस विल कॉज आइस कैप्स टू मेल्ट। इफ़ टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज डे बाई डे, व्हाट हैपन्स, आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे, यानी कि ग्लेशियर्स, आइस कैप्स जो होते हैं ठंडे एरिया में, वो जो होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल्स राइज हो जाएंगे। एज आइस क्लैप्स और आइस मेल्ट, तो सी लेवल का जो होगा लेवल जो होगा वो राइज हो जाएगा। देन व्हाट हैपन, वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी हमारे पास सीज़ में, वाटर्स में, लेक्स में ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा, वेदर का पैटर्न चेंज हो जाएगा, फ्लडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। डेजर्ट्स हमारे पास का अमाउंट हमारे पास बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो वाटर जो होगा ग्लेशियर्स का और आइस मेल्ट होगी तो वाटर में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से डेजर्ट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। मोर ड्राफ्ट, यानी कि जो ड्राफ्ट होगा तो मतलब कारण जब हमारे पास हीट का प्रेशर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर। ड्राफ्ट मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर। जब आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेंटी एरिया में, एक एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसको किसी टाइम के लिए ना मिले, महीनों के लिए ना मिले, तो उसमें खड्डे पड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे वो सूख जाती है, दैट इज़ नोन एज ड्राफ्ट कॉज हो जाती है जब हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ क्रॉप्स, जैसे कि हमारे पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कम जो होते हैं वो ग्रो करेंगे, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर है। जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सीड्स और बीन्स वगैरह कुछ भी हम लोग को नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को का जो ज़्यादा एरिया है, प्लांट्स को किस पर डिपेंड करता है, उनको पानी चाहिए होता है, अच्छा वेदर चाहिए होता है, राइट। इफ़ द शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी, प्लेंटी ऑफ वाटर होगा, हमारे पास हम लोग को हीट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तो हमारे जो होंगे, जाहिर सी बात है, क्रॉप्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो उनका ग्रीन नहीं होगा अच्छे से एरिया में, ठीक है, और वो जो होंगे ख़राब हो जाएंगे। दिस इज़ द कॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, एंड जिस वजह से हमारे पास पोल्यूशन कॉज हो जाता है, पोल्यूशन से हमारे पास एसिड रेन होती है, फिर ग्लोबल वार्मिंग, एंड दीज थिंग्स कॉज ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, ठीक है। नाउ स्प्रेड ऑफ डिजीज़ केयरिंग इंसेक्ट्स लाइक, यानी कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने ज़्यादा इंसेक्ट्स होंगे, उतने ज़्यादा मॉस्किटोज़ होंगे, और क्योंकि एज यू नो दैट मॉस्किटोज़ एंड इंसेक्ट्स लिव इन warm areas, so these are the effect that is caused due to the increase of heat in our earth due to greenhouse effect, that this is known as global warming. So this is your question number 1 2 3 up to 6. This is your homework. You have to perform your homework, right? And this is each and every question is done and given in your exercise, so go and find it out. I hope you understand this topic. So take care until we will meet in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.